Hi friends, I am Nikhil. I am the founder of Punji Mitra. So last video हमने कवर करा था कि market will stay a bit choppy in the coming times and ऐसा ही कुछ हमें इन दिनों मार्केट में देखने को मिला. There hasn't been a one side rally purely during the first half of the week, but second half of the week में हमने ये देखा after expiry especially कि मार्केट ने अब डायरेक्शन लेना चालू कर दिया धीरे धीरे and it's more on the negative side and the things don't look good from here on. Okay, so for all the investors who have entered in the last 1 or 2 years, अब आप मार्केट को दोनों तरीके से फर्स्ट टाइम देखोगे जहाँ पे मार्केट अपसाइड भी दे रहा है डाउन साइड भी दे रहा है. वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं उनके लिए कह दूँ कि उनके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है. The macroeconomic factors of India seem intact. There's nothing which can, I always say in these videos that there's nothing that can hurt the economy of India until and unless there's some geopolitical scenario which gets created and which erodes all the gains which we have made in the past 7 to 8 years. Apart from that, मुझे नहीं लगता the position of India in the global market is such that even after 5-10% correction for a longer term rally we are always ready. मतलब निफ्टी के ठीक है अभी मार्केट टूटा हुआ है, we all are pessimistic, but if I talk about next 5-10 years I still have a very bullish story as far as India is concerned. बट हाँ, अगर आप इमीडिएट मे बी 3-4 महीने की बात करो या नेक्स्ट 6 महीने की बात करो, चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं जहाँ पे हमें कॉशियस रहना पड़ सकता है. एंड फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स हु आर डूइंग SIP या कोई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एक्यूमुलेट स्टॉक्स और एक्यूमुलेट योर वेल्थ वाया म्यूचुअल फंड्स. बिकॉज आप हमेशा वेट करते रहते हो यार मार्केट में डाउनफॉल आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे. जब डाउनफॉल एक्चुअली आता है तब इतना मार्केट में प्रेशर क्रिएट होता है, देन यू ऑल बिकम पेसिमिस्टिक एंड स्टॉप योर काइंड ऑफ यू सिट ऑन योर मनी without allowing it to actually accumulate. So this is a very good time for accumulation if anyone was planning for last 6 months. इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा मार्केट में to accumulate stocks or mutual funds at a very low price. Having said that, let's look at the market, and this video is only going for a short term analysis. It's not for investors who are there for the long term phase. Okay, so हम पहले बात करते हैं Nasdaq की बात करते हैं because eventually whenever US sneeze the world gets cold. So अभी US का inflation data आया था and the picture doesn't look good as I said, and this kind of inflation might be here to stay for some time. I know this is a very pessimistic approach which I'm taking, but हाँ कहानी कुछ ऐसी ही है. And जब भी इन्फ्लेशन होता है, a lot of times eventually the interest rate has to rise, and which we are seeing in Indian market also, which we are seeing in US market also. So जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड्स की यील्ड ऊपर आएगी एंड इवेंचुअली उसका सारा बर्डन स्टॉक मार्केट पे आता है, एंड दैट्स व्हाई यू सी देयर इज अ बिग क्रैश व्हिच हैपेंड. मतलब इवन Nasdaq भी 15,000 से डायरेक्ट ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास, 11,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है. एंड आई थिंक इट्स बीन मोर लेस देन 3 वीक्स, आई वुड से लेस देन 3 मंथ्स, आई वुड से 3 महीने के अंदर ही पूरी रैली जितनी इसने रैली ली थी वो सब सिमट के नीचे आ गई. So this is the amount of time it took for Nasdaq to crash down just after the declaration of inflation and rising interest rate. And this scenario is going to prevail. मतलब things can go very southwards. अगर ये जो सपोर्ट रीजन है हम ये भी ब्रेक करके 11,700 का ब्रेक करके अगर Nasdaq और नीचे आता है तो थिंग्स कैन एक्चुअली गो साउथवर्ड. हम जो ये लंबे गेन्स हमने करे थे ना उनका एक थोड़ा सा एक कहते हैं पॉज लग सकता है, एक छोटा सा पॉज लग सकता है फॉर द टाइम बीइंग इफ एनीथिंग एंड इफ द सपोर्ट ब्रेक्स फ्रॉम हियर ऑन ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट Nasdaq. हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की. इंडियन मार्केट में हम आ जाते हैं निफ्टी में. निफ्टी का मैंने लास्ट टाइम भी ये वीडियो में चीज़ कवर करी थी कि हम एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहे हैं निफ्टी के, अप डाउन एंड एक छोटा सा फिर से नीचे डाउन. हम एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहे हैं एंड जब तक इस डाउनवर्ड चैनल से हम बाहर नहीं निकलते ना, जो मार्केट में मेजर मोमेंटम है, मैं लास्ट टाइम भी वीडियो में भी थोड़ा सा डाउन साइड के लिए बायस था एंड अभी भी डाउन साइड के लिए बायस हूँ. जब तक ये चैनल हम ब्रेक करके इस चैनल से बाहर नहीं, जो वाइट पैटर्न्स है इनसे बाहर नहीं निकलते ना जब तक, तब तक कोई मुझे मोमेंटम लगता नहीं है मार्केट में.
एंड अगर कोई बहुत ही बुलिश होना चाहता है तो जब तक हम 17,000 का लेवल अचीव नहीं कर रहे ना, अराउंड 16,987, तो हाँ 17,000 का हम लेवल जब तक अचीव नहीं करें, उसके ऊपर नहीं निकल रहे, आई डोंट सी वेरी गुड अपसाइड्स इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट। बाकी जहाँ तक बात रही डाउन साइड की, जो पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कॉल ऑप्शन सेल करना पसंद करते हैं, उनके लिए देयर विल बी मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट में अब क्या है, मोमेंटम कम हो गया है, द वॉलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मोमेंटम कम है। यहाँ पे स्ट्रैडल्स बना के या फिर आप पुट ऑप्शन सॉरी कॉल ऑप्शन सेल करके पुट ऑप्शन बाय करके आप अपना पैसा बना सकते हो। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स ऑन द नेगेटिव साइड। बट इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से, टिल द टाइम वी डोंट ब्रेक 17,000 और उसके ऊपर निकल के इस पैटर्न को हम ब्रेक करें, जिससे हम ऑलमोस्ट 3-4 महीने या उससे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक करके निकलना बहुत ज़रूरी है। ये बात रही बैंक निफ्टी की। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी आप सेम ही चीज़ देखोगे ऑन अ लॉन्गर सॉरी ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, ऑन अ डेली चार्ट बेसिस। यहाँ पे भी सेम कहानी चल रही है कि जैसे ही हम ये पैटर्न को ब्रेक करेंगे तभी हम अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं, वरना मोर और लेस वी आर बायस्ड ऑन द डाउन साइड। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में अगर इस सपोर्ट हम ब्रेक करते हैं, जो मुझे लग रहा है हम बहुत ईजिली ब्रेक कर देंगे, ये ब्रेक करते हैं तो और डाउन साइड मिल सकता है बैंक निफ्टी में इन द कमिंग टाइम्स। एंड इन दिस वीक आई वुड से कि ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी मोर देन निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में अच्छे मोमेंटम ट्रेड्स मिल सकते हैं इन ऑप्शंस। बाकी आई डोंट थिंक अभी इक्विटीज में ट्रेड करना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। इफ़ यू आर अ ट्रेडर इन इक्विटी मार्केट, फॉर इन्वेस्टर्स दिस इज अ वेरी गुड टाइम, लेके भूल जाने वाला काम कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कुछ स्टॉक्स कवर कर रहा हूँ विच कैन बी टेकन इन दिस मार्केट, बट ओनली फॉर अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव। शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा इस टाइम के लिए। फर्स्ट स्टॉक इज रेनुका शुगर्स। सो रेनुका शुगर्स में अगर देखें तो रेनुका शुगर्स क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा इलाज कर लेता है। रेनुका शुगर्स ने एक यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद अपना सपोर्ट रीजन टेस्ट करा, इसको ब्रेक करके फिर से अपना सपोर्ट रीजन पे बेस बना रहा है। सो अगर कोई यहाँ से ट्रेड लेना चाहता है तो रेनुका शुगर्स में एक बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, अराउंड 48-49 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से एक अपसाइड की पोजीशन ले सकता है। एंड बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना है, इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट अराउंड 10 रुपये का रखना है। तो 1:5 का बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है इन रेनुका शुगर्स। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टॉक। सेकेंड स्टॉक इज जोमेटो। जोमेटो अब आई थिंक जोमेटो बहुत चला था, उसके जोक्स काफ़ी चले थे, बट जोमेटो नाउ सीम्स ऑन द पार्ट टू रिकवरी, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि यहाँ से आप देखो तो जोमेटो अब यहाँ से अपने एक 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है, प्लस एक छोटा सा यहाँ पे कप एंड हैंडल का ये मोमेंटम बनने में दिख रहा है। सो अगर आप चाहें तो यहाँ से जोमेटो में ट्रेड ले सकते हैं, बट जोमेटो में डाउन साइड का कुछ पता नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छे सपोर्ट रीजन्स नहीं है जोमेटो में। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत ही एक अच्छा कॉशियस ट्रेड ले, ठीक है। आपने जो 50 डे मूविंग एवरेज है विच इज़ मतलब 71 के ऊपर जाते ही इसमें एक एंटर कर सकते हैं ट्रेड, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एंड एसएल फिर इस मूविंग एवरेज को ही बना लीजिए विच इज़ अराउंड 71। इसके ऊपर जाने पे ही स्टॉक में एंटर कीजिएगा, इसके नीचे नहीं। आई वोंट सजेस्ट एंटर इनटू जोमेटो बिफोर दिस। एक बार उसको वीकली चार्ट पे भी अगर देख लिया जाए तो सेम कहानी है, जब तक ये अपना मूविंग एवरेज तोड़ता नहीं है उसके बिना उस पर नहीं जाना है। 50 डे मूविंग एवरेज विच इज़ अराउंड 71, उस पर ही एंटर करना है स्टॉक में। थर्ड स्टॉक फॉर द डे इज वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस में मुझे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा है, एंड इनफैक्ट वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट दिस स्टॉक इज कि इवन आफ्टर सो मच वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम्स मिले हैं कंपेयर टू नॉर्मल मार्केट। ज़्यादा वॉल्यूम्स है स्टॉक में, बोलो भैया। अगर वरुण बेवरेजेस में देखो तो स्टॉक हैज़ सीन अ वेरी गुड बैटल बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, ठीक है। एंड जिस चीज़ से मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस आया कि इसने जो लास्ट कैंडल जो बनाई है ना, इसने जो क्लोज है उसके ऊपर, प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर क्लोज करा है, ठीक है, प्रीवियस वीक के क्लोज के ऊपर क्लोज करा है, एंड एक हैमर फॉर्मेशन बनाई है। जो ये लास्ट फॉर्मेशन बनी है इसे हैमर फॉर्मेशन बोलते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि स्टॉक में बायर्स का ज़्यादा जोर चल रहा है कंपेयर टू सेलर्स। जब ऐसा रहता है तो अगर स्टॉक को एक अच्छा मोमेंटम मिला मार्केट से तो इट कैन गिव अ वेरी गुड अपसाइड।
बहुत एक अच्छा अपसाइड दे सकता है. दैट्स वाई आई बिलीव कि वरुण बेवरेजेस वन स्टॉक विच यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एंड डेफिनेटली कीप ऑन योर स्टॉक इन योर बकेट पोर्टफोलियो. सो वरुण बेवरेजेस में और एक और चीज़ अगर देखें, इसको मैं अगर डेली चार्ट पे करके लंबा मोमेंटम अगर दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड, उसमें आप अगर देखें तो एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हो रहा है. हायर लोज एंड रिलेटिवली थोड़े हायर हाइस. स्टॉक एक इस चैनल में प्ले कर रहा है, तो आई बिलीव कि यहाँ से अच्छे अपसाइड मिल सकते हैं. फॉर कॉशियस ट्रेडर्स दे कैन कीप अ वेरी गुड स्टॉप लॉस विच इज़ अराउंड 709 के आसपास स्टॉप लॉस रख के 900 तक के पोजिशनल टारगेट्स हम स्टॉक में देख सकते हैं. जो थर्ड स्टॉक फॉर द डे वॉज वरुण बेवरेजेस. ठीक है. सो दीज आर द स्टॉक्स विच आई एम गोइंग टू कवर, विच आई हैव कवर्ड सॉरी टुडे. एंड बी वेरी कॉशियस इन द मार्केट. कुछ भी गलत सलत ट्रेड नहीं करना है. ऑप्शंस में ट्रेड करो, प्योर इक्विटीज में मत करो. ऑप्शंस में जब भी ट्रेड करो जब आपको फुल कॉन्फिडेंस है. मेरा बायस थोड़ा सा नेगेटिव साइड के लिए ज़्यादा है फॉर एटलीस्ट दिस एक्सपायरी आई बिलीव. And I hope things get better in the market very soon. For long-term investors, there's no need to worry. In fact, this is a good time for accumulation. जितना accumulate करोगे, जितनी averaging हो जाएगी, long term में उतने ही अच्छे profits आपको मिल सकते हैं. So this is it from my side. Thank you guys. Have a nice day.